So what are basically tension members? Tension members are the structural elements which are subjected to axial tensile forces. यानी ऐसे members जिनमें axial tensile forces develop होती हैं, those members are called tension members. And these are typically used if I talk about the steel structure, these are typically used in trusses. This is one of the model of a truss in which you can clearly see that there are few tension members labeled by the green color, and some of it are compression members. And there's another practical example. If you look at the practical example of steel structures, tension members, so आपको जो bracing नज़र आ रही हैं, these lateral bracings in the structural frame, steel structural frame, are basically tension members. So इन members को basically हम design करते हैं as a tension member. Similarly, these beams, this is also a flexion member जिसमें tension develop होती है. So this is one. This could be taken as a tension member. So here are some of the practical examples of tension members. Another example is in suspension roof. So ये जो आपको cables हैं, steel cables हैं, इनको भी properly design किया जाता है that what should be the dia of this cable or this steel member to sustain the load of this roof system. So these suspension cables are also designed as a tension members. Another example is if you can we can use tension member in the bridges, as shown as the Golden Gate Steel Bridge. So these suspension cables, these are also designed as a tension member. So proper ध्यान दिया जाता है कि what should be the strength of the steel to be used in these members, and what should be the dia, and what should be the different specifications of these members. So here these were the few examples that shows that about the tension members. So as I told you earlier, what are the tension members? So tension members are those structural elements which are subjected to axial tensile forces. यानी ऐसे member जिनमें tensile forces develop होती हैं corresponding to the जो हम उस पर load apply करते हैं. किसी भी structure पे जब load apply होता है, उस structure का अपना load और जो उसके ऊपर superimpose loads होते हैं, उनके correspondingly जो stresses develop होंगे, जो forces develop होती हैं member में, अगर tensile forces किसी member develop हो, that member would be called tension member. It's that simple. अच्छा, जैसे कि आपको ये एक नज़र आ रहा है ऑन योर स्क्रीन इन द करंट स्लाइड, दिस इज़ अ स्टील प्लेट, ठीक है, एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू अ गजेट प्लेट. इसको हम गजेट प्लेट बोलते हैं, और दिस इज द स्टील प्लेट एंड दैट इज कनेक्टेड टू इट बाय अ बोल्ट कनेक्शन. Now remember that in case of steel structures there are two types of connections. One of the kind is of weld connection, another one is a bolt connection, which you're gonna study in the later half of the series. So जब ये एक प्लेट इस गजेट प्लेट के साथ कनेक्ट की हुई है इन बोल्ट कनेक्शन, सो एंड इफ इट इज़ अप्लाइड विद सम टेंसाइल फोर्स एज शोन इन द फिगर, सो इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली इस प्लेट में जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दो स्ट्रेसेस डेवलप वुड बी कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस, वुड बी ऑफ टेंसाइल नेचर, वो जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एंड रिस्पेक्टिवली वी वुड कॉल दिस मेंबर टेंशन मेंबर. ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर मैंने इस प्लेट में फाइंड आउट करना है तो कैसे करूँगा? इफ़ आई गेट टू नो अबाउट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, एंड इफ I divide this tensile force by the cross-sectional area of this plate, then I would be able to find out the tensile stresses. So to find out the tensile stresses, this force divided by cross-sectional area of this plate. अब cross-sectional area क्या होगा? Cross-sectional area would be the width of this plate. That is, if I'll go by the name of this plate, that is 8 inches, and the thickness of the plate. And if I see in the cross-section, अगर मैं इसका cross-section इधर से कट करता हूँ, so मेरे पास इसकी thickness of plate कितनी है? That is half inch. और इसकी width कितनी है? 8. So 8 multiplied by half, that is the cross-sectional area. And if I divide the tensile force by this area, I would be getting the tensile stresses develop at this region. मुझे इधर के tensile stresses का develop हो जाएगा. So जैसे जैसे अब tensile stresses कहाँ critical होंगे? What are the possibilities कि जब मैं ये force apply करूँ तो ये कहाँ से क्रैक डेवलप हो और ये कनेक्शन फेल हो सकता है, ये प्लेट क्रैक हो सकती है. देयर कुड बी चांसेस कि क्रैक ऐसे डेवलप, अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, नीचे मैं इसको पुल कर रहा हूँ, देयर आर चांसेस कि इधर क्रैक डेवलप हो और उसकी वजह से फेल हो जाए. देयर आर चांसेस कि यहाँ से क्रैक डेवलप ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाए जहाँ पे होल्स हैं, जहाँ पे, और उधर से स्ट्रेसेस क्रिटिकल हो सकते हैं. टू माई लाइकिंग, और जो सेंस प्रिवेल करती है कि जहाँ पे होल्स डेवलप होते हैं
and these are developed due to develop a connection. This region is critical. क्यों? क्योंकि the cross sectional area जो है वो कम हो जाता है. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कम हो जाता है कि मुझे इस होल का एरिया इसमें से माइनस करना पड़ता है. सो इन शॉर्ट अगर इधर से मैं क्रॉस सेक्शन कट करता हूँ तो ये जो होल्स का एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा. पहले क्या था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, बट अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रह गया इस प्लेट का. अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली प्लेट की बात करूं, जैसे कि ये प्लेट है, सो इसमें से ये होल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा. सो अब एरिया अगर फाइंड करना है तो आई वुड बी लेफ्ट विद इफेक्टिव विड्थ. इफेक्टिव विड्थ क्या होती है, जहाँ से लेकर जहाँ तक, फिर इन दो होल्स के दरमियान, और फिर इधर से आ जाएगा. सो इफेक्टिव विड्थ मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द प्लेट. ठीक है, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्रॉस सेक्शनल रह जाएगा. और मैं जब एरिया कम होगा, जैसे कि एरिया कम होगा इस जगह पर, सो फोर्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलर एरिया, तो स्ट्रेसेस इधर बढ़ जाएंगे. सो दिस रीजन वुड बी हैविंग द क्रिटिकल टेंसाइल स्ट्रेसेस. सो देयर आर पॉसिबली चांसेस कि यहाँ से फेलियर होगा. सो मेनली कहने का मकसद यह है कि प्रेजेंस ऑफ होल और रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल इफेक्ट द स्ट्रेसेस डेवलप इन दैट रीजन. इफेक्ट कैसे करेगा कि उसके स्ट्रेसेस बढ़ा देगा. इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग स्लाइड्स आपको इससे बेहतर आइडिया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो now you need to remember about you need to find out the difference between, there are basically three terms involved with the area. ठीक है, तीन तरह के एरियाज होंगे. ये तीन टर्म्स हैं एरियाज की, और जिसको आपने बड़े क्लियरली जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको. वो फर्स्ट ऑफ द टर्म इज द ग्रॉस एरिया, सेकंड टर्म इज द नेट एरिया, एंड द थर्ड टर्म इज द इफेक्टिव एरिया. ठीक है जी, तीन तरह के एरियाज होंगे. ग्रॉस एरिया को हम टोटल एरिया भी कह सकते हैं. टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड ग्रॉस एरिया. टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं जब मैं बात करता हूँ तो देयर आर नो होल्स इन दैट रीजन. जैसे कि यहाँ ए सेक्शन है, तो जो टोटल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से बता देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे, विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस. सो दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस एरिया. अगर इसमें ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ होल्स माइनस कर दूँ तो फिर जो एरिया बचेगा दैट वुड बी कॉल्ड नेट एरिया. ठीक है, सो ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स is called net area. जैसे कि मैं B region पे बात करता हूँ, so if I remove or I subtract the area of these holes from the gross area, I would be left with the net area. So sum of product of thickness and net width of each element. मैं आपको बता चुका net width will be the, जिसमें से हम ये holes माइनस कर देंगे. So net width multiplied by the thickness, that comes out to be the net area. There is another term called effective area. वी कॉल्ड इट नेट इफेक्टिव एरिया. हम इसको नेट इफेक्टिव एरिया भी कह सकते हैं, या सिर्फ इफेक्टिव एरिया भी कह सकते हैं. और इफेक्टिव एरिया कैसा होता है, इफेक्टिव एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस एरिया से नेट एरिया निकाल लिया, और जब हम नेट एरिया को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट फैक्टर इज कॉल्ड शियर लैग फैक्टर. नेट फैक्टर को हम शियर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द रिजल्टेंटली जो हमें एरिया मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड इफेक्टिव एरिया. अब याद रखिएगा, जब भी कोई कनेक्शन डेवलप होता है तो ये जो शेयर लैग फैक्टर होता है इसकी वैल्यू हमेशा इट शुड बी लेस देन 1. ठीक है, नेट एरिया रिड्यूस फर्दर बाय फैक्टर लेस देन 1 टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ शेयर लैग इज कॉल्ड. ये जो इफेक्ट है शेयर लैग का, ये मैं चलता आपको इन द कमिंग स्लाइड्स आपको क्लियर करूंगा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेयर लैग. सही है, सो अभी तक के लिए याद रखने के लिए तीन चीज़ें, ग्रॉस एरिया, उसमें से एरिया ऑफ होल्स माइनस किया दैट इज नेट एरिया, और जब हम नेट एरिया को शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड बी गेटिंग इफेक्टिव एरिया. सो दीज आर द थ्री टर्म्स इन्वॉल्व्ड. ठीक हो गया. अच्छा, देन वी गोना कम अप टू द लिमिट स्टेट्स. टेंशन मेंबर की लिमिट स्टेट्स क्या है. लिमिट स्टेट्स का मतलब ये है कि वो कौन सी लिमिट्स होंगी जिसके बाद हम ये कहेंगे दिस मेंबर फेल टू सर्व द पर्पस, या इसके बाद वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर देता, ये किसी काम का नहीं है. सो अगर दो चीज़ें हो जाएं, इफ़ देयर इज एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, जिसको हम यील्डिंग भी बोलते हैं, कि अगर मेंबर यील्ड कर जाए, ठीक है, तो उसके बाद हम कहेंगे इट फेल्स टू सर्व द पर्पस. और इफ़ आइदर फ्रैक्चर्स, अगर मेंबर फ्रैक्चर हो जाए, अगर उसमें क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाए, तो इस स्टेज को भी हम कहेंगे कि अगर ये स्टेज हम क्रॉस कर जाएं तो दैट मीन्स इट फेल्स टू सर्व द पर्पस. सो व्हाट आर द लिमिट स्टेट्स, हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक एक्सेसिव डिफॉर्मेशन ना हो, एंड व्हाट इज़ द फ्रैक्चर. ठीक है, सो दो तरह की स्ट्रेंथ होंगी, एक हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग एंड नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर. ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, रिमेंबर दैट स्टील की और इसमें नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग के वो कितनी लोड कैपेसिटी है ताकि उसके बाद वो यील्ड कर जाएगा, एंड व्हाट इज द लोड कैपेसिटी फॉर द फ्रैक्चर. वो कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं, सिंपल फार्मूलाज हैं. फॉर द यील्डिंग, नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग इज यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द, मतलब जिस स्टील की वो बनी है, मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस एरिया. ठीक है, जब हम यील्डिंग स्ट्रेंथ को ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड फाइंड आउट नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, उस मेंबर की यील्डिंग.
और जब मैं अगर मैंने उसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। हेयर एफ वाई इज द यील्डिंग स्ट्रेंथ एंड एफ यू इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और जब मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इफेक्टिव एरिया से, याद रखिएगा इट इज़ द इफेक्टिव एरिया, इट्स नॉट द नेट एरिया, इट्स द इफेक्टिव एरिया। जब मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई वुड बी गेटिंग द नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर। सही है। सो बेसिकली दो चीज़ें ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब इससे आगे फर्दर सब डिविजन्स आ जाती हैं कि नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग एंड नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर, दोनों चीज़ें, इन दोनों को हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग LRFD, वन ऑफ द अप्रोचेज। दो डिज़ाइन अप्रोचेज हैं जैसे कि हम क्लासेस में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ द अप्रोच इज LRFD, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन, एंड सेकेंड अप्रोच इज द ASD, अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन। सो दो अप्रोचेज हैं, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन एंड अनदर अप्रोच इज द ASD, अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि LRFD में ऑब्वियसली इनके साथ जो एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ है हम उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फैक्टर को हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर भी बोल सकते हो, एंड यू कैन कॉल इट आल्सो एज अ रेजिस्टेंस फैक्टर। सही है। रेजिस्टेंस फैक्टर की जो वैल्यू जिसको हम फाई टी या साई टी से रिप्रेजेंट करें, टी स्टैंड फॉर टेंशन मेंबर, ठीक है। सो फाई टी या साई टी दैट इज डिनोटेड एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर यील्डिंग, इट्स वैल्यू इज 0.9 फॉर द यील्डिंग अगेंस्ट यील्ड फॉर यील्डिंग स्ट्रेंथ एंड फॉर फ्रैक्चर इस वैल्यू इज 0.75। ठीक हो गया। इसमें फ्रैक्चर चूँकि ज़्यादा क्रिटिकल है तो इस वजह से इसका सेफ्टी मार्जिन और ज़्यादा रखा गया, दैट इज 0.75। सो हम क्या करेंगे, नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर या रेजिस्टेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 इन यील्डिंग एंड फॉर द फ्रैक्चर इट इज 0.75 एंड वी वुड चेक इट अगेंस्ट द अल्टीमेट लोड्स। ठीक है। अल्टीमेट लोड्स कौन से होते हैं, जो फैक्टर्ड लोड्स होते हैं। इन द कमिंग एग्जाम्पल आई वुड टेल यू अबाउट, आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी व्हाट आर द फैक्टर लोड्स या व्हाट आर द अल्टीमेट लोड। तो हम ये चेक करते हैं कि factor loads, whether the factor loads are less than nominal strength against yielding or nominal strength against fracture। ठीक हो गया। This is the LRFD approach, whereas in ASD approach में हम क्या कहते हैं कि वो जो हमारे पास nominal strength है, in case of LRFD हम strength reduction factor से multiply करते हैं। इधर हम इसको ओमेगा, इस ओमेगा को क्या बोलेंगे, resistance factor। ठीक है। या resistance factor की जगह हम बोल दे सकते हैं, more suitable term would be safety factor। इधर हम इसको रेजिस्टेंस फैक्टर बोलते हैं इन LRFD। हाउएवर इन केस ऑफ ASD हम वी वुड कॉल एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर बोल देंगे, ओमेगा। ओमेगा F स्टैंड्स फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेफ्टी फैक्टर फॉर द केस ऑफ यील्डिंग, फॉर केस ऑफ यील्डिंग इट इज 1.67 एंड फॉर केस ऑफ फ्रैक्चर इट इज 2। सही हो गया। सो हम क्या करेंगे, इनके ASD हम नॉमिनल स्ट्रेंथ को 1.67 से डिवाइड कर देंगे फॉर द यील्डिंग एंड फॉर फ्रैक्चर नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर ऐसे ही आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज 2। ठीक हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 1.6 फॉर द यील्डिंग 1.67 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, या आप यूँ भी कर सकते हो कि इफ 1 डिवाइड बाय 1.67 दैट कम्स आउट टू बी 0.6, तो 0.6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, एंड 1 डिवाइड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 0.5, सो आप 0.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट मीन्स द सेम, वेदर इस तरीके से फाइंड आउट करो या वेदर इस तरीके से फाइंड करो। ठीक है। सो दोनों में सिर्फ इतना सारा डिफरेंस है। ठीक है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर होगा कि हम इन केस ऑफ LRFD वी कंपेयर द स्ट्रेंथ अगेंस्ट द अल्टीमेट लोड। ठीक है। और इन केस ऑफ ASD हम ये जो स्ट्रेंथ होती है इसको हम बोलते हैं अलाउएबल स्ट्रेंथ। इन केस ऑफ LRFD हम इसको डिज़ाइन स्ट्रेंथ बोलते हैं, और उनको हम चेक करते हैं इन ASD हम अलाउएबल लोड्स के हिसाब से चेक करते हैं। अच्छा, अब जब हमें कनेक्शन करना है, कोई भी दो प्लेट्स हो या कोई भी दो स्टील मेंबर्स है, उन्हें कनेक्शन करना है, तो वी नीड टू ड्रिल, आई टोल्ड यू अर्लियर कि दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है कि बोल्ट कनेक्शन हो, एंड अनदर वन वुड बी द कि वेल्ड कनेक्शन हो। अभी तक मैं बात कर रहा हूँ बोल्ट कनेक्शन की। तो बोल्ट कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे, अगर लेट्स से इफ़ आई एम गिवन विद द बोल्ट से रिलेटेड 3 से 4 तरह के होल्स होते हैं। ठीक है। एंड टाइप्स हैं डिफरेंट। सो SDD stands for standard hole, O is the abbreviation for the oversized hole, short slotted hole and long slotted hole। अब क्या हुआ कि अगर लेट्स से अगर मेरे पास बोल्ट का डाया है 1/2 इंचेस, अगर ये मेरे पास बोल्ट है और उसका डाया है 1/2 इंचेस, और मुझे ड्रिल करना है, तो मुझे होल का डाया कितना चाहिए होगा, होल का डाया कितना करना होगा टू ड्रिल द होल ऑफ बोल्ट, टू ड्रिल द बोल्ट जो हमने मैंने 1/2 इंच का मैंने जो बोल्ट ड्रिल करना है, उसके लिए क्या कर रहा हूँ, इफ़
स्टैंडर्ड टाइप होल अगर मुझे ड्रिल करना है तो क्या होगा कि अगर मेरे पास जो डाया है बोल्ट का, उसमें एडिशनल 1/16 इंचेस ऐड कर देना है उस डाया में, और उस डाया का मुझे होल ड्रिल करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग वुड बी कि अगर मुझे डाया है, लेट्स से 1/2 इंच बोल्ट है, और मुझे जो होल ड्रिल करना है, अगर ओवर साइज होल टाइप ड्रिल करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बोल्ट के डाया में 3/16 इंचेस ऐड करूँगा और फिर उस हिसाब से मैं होल ड्रिल करूँगा। सेम गोज फॉर द शॉर्ट स्लॉटेड होल, कि शॉर्ट स्लॉटेड होल में क्या हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द होल, और एक विड्थ ऑफ द होल आ जाएगी। लेंथ ऑफ द होल के लिए क्या करना पड़ेगा, डाया ऑफ द बोल्ट प्लस 1/4 इंचेस, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द होल, एंड विड्थ ऑफ द होल के लिए क्या है, डाया प्लस 1/16। सही हो गया? सो दैट इज द शॉर्ट स्लॉटेड होल। एंड लॉन्ग स्लॉटेड होल के लिए देन अगेन इट गोज विद द 2.5 टाइम्स डाया प्लस 1.6 इंच। सही हो गया? इसको ज़्यादा इजीली ये बताया हुआ मेंशन किया होगा, अगर बोल्ट का डाया इतना होगा तो अगर इफ बोल्ट डाया इज दिस मच, सो यू नीड टू ड्रिल द होल ऑफ, अगर स्टैंडर्ड होल ड्रिल करना है तो ये डायमेंशन रखनी है, एंड गोज फॉर ओवर साइज एंड शॉर्ट स्लॉटेड एंड लॉन्ग स्लॉटेड होल। और आपको इधर क्लियरली नजर भी आ रहा है, ठीक है? सो दिस इज द स्टैंडर्ड होल डाया, लॉन्ग स्लॉटेड, शॉर्ट स्लॉटेड, एंड यू हैव सीन दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। अक्सर डोर्स में आपको इस किस्म के कनेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? सो और स्टील मेंबर्स में आपको इसी तरीके से कनेक्शन नज़र आ रहे होते हैं। सो हेयर द फर्स्ट ऑफ द एग्जांपल, जो पहली एग्जांपल आएगी टेंशन मेंबर्स की। सो वी शुड स्टार्ट विद गोइंग कि हमारे पास क्या है, a half 1/2/5 inch plate of A36 steel is used as a tension member. I would read the statement first and then मैं उसको break down करूँगा, then we're gonna go to the solution. So हमारे पास एक plate है, half 1/2 multiplied by 5 plate of A36 steel is used as a tension member. tension member के तौर पे यूज हो रही है. It is connected to a gusset plate with 4 5/8 inch dia bolts as shown on the figure. वो एक gusset plate के साथ उसका connection हुआ पड़ा है. Assume that the effective net area equals the actual net area. ठीक है? वो ये कहना चाह रहा है कि जितना नेट एरिया है दैट इज, और इफेक्टिव एरिया भी उतना ही है, मतलब शीयर लाइफ फैक्टर इसमें हम 1 ही ले रहेंगे। सो नेट एरिया इज इक्वल टू इफेक्टिव नेट एरिया। एंड अगली जो एग्जांपल होंगे उसमें हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीजर में बताऊंगा। बट टिल नाउ आपको ये देखना है कि जितना इफेक्टिव एरिया उतना नेट एरिया। तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है फॉर LRFD, एंड अलाउबल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है AST। दैट मीन्स द सेम, ठीक है? स्ट्रेंथ उसी तरीके से फाइंड करनी है जैसे हम आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि फॉर LRFD हम टर्म यूज़ करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ, एंड फॉर ASD हम यूज़ करते हैं टर्म अलाउबल स्ट्रेंथ। ठीक होगा? तो अगर मैं देखूं कि एक प्लेट है और उसको कनेक्ट किया हुआ है गजेट प्लेट के साथ, और किस से कनेक्ट किया हुआ है, बोल्ट्स हैं, और बोल्ट्स कौन से हैं, 5/8 इंच उनका डाया दिया हुआ है बोल्ट्स का, ठीक है? और स्टील कौन सी है प्लेट की, प्लेट का जो स्टील यूज़ हो रहा है दैट इज़ A36 स्टील। A36 स्टील के बारे में भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। सो सबसे पहले क्या करना है, मुझे डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर LRFD क्या हो जाएगी, डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर शील्डिंग होगी एंड डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर होगी। सही है? जैसे दो ही पढ़ चुके हैं ना, तो पहले हम LRFD को देखते हैं। अब मुझे अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर यील्डिंग के लिए क्या था फार्मूला, FY/AG। तो सबसे पहले क्या मुझे फाइंड आउट करना है, पहले तो ग्रॉस एरिया और यील्डिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। सो पहला स्टेप क्या, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया किस चीज़ का, इस प्लेट का। अब इस प्लेट का ग्रॉस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास ये एक प्लेट है। इफ़ आई क्लियरली लुक एट द नेम ऑफ दिस प्लेट, तो मुझे इस प्लेट से क्या पता चल रहा है, व्हाट इज़ 1/2 × 5। हाफ क्या है इस प्लेट की थिकनेस, और 5 क्या है विड्थ। हाफ मतलब 1/2 इंच उसकी थिकनेस है उस प्लेट की, और जैसे क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रहा है, एंड 5 इज़ द विड्थ ऑफ द प्लेट, 5 इंच इज़ द विड्थ ऑफ द प्लेट। तो अगर मुझे इसका ग्रॉस एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 1/2 × 5। सो ग्रॉस एरिया 5 × 1/2 दैट इज़ 2.5 इंच का। सो मेरे पास उस प्लेट का ग्रॉस एरिया आ गया। अब बस मैं प्लेट के ग्रॉस एरिया को उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगी नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग आ जाएगी। अब यील्डिंग स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, ये जो A36 स्टील है, A36 स्टील का मतलब क्या है कि 36 क्या डोनेट कर रहा है, 36 इज़ द यील्डिंग स्ट्रेंथ। 36 मतलब 36 KSI, मतलब 36,000 PSI इसकी क्या है, यील्डिंग स्ट्रेंथ है। याद रखिएगा, आपको वैसे याद हो जाना चाहिए कि A36 स्टील की जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है दैट इज़ 36 KSI, और इसकी अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है FU जो होती है वो दैट इज़ 58 KSI। ठीक है? मैं आपको डिज़ाइन नोट्स दूंगा, उसमें ये लिखा भी होगा, क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है? सो FY इज़ द यील्डिंग स्ट्रेंथ दैट इज़ 36 KSI, ये होता है स्टैंडर्ड है।
ठीक है। और उसको मैं जब मैं ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग आ जाएगी, दैट इज़ 90 किप्स। क्लियर हो गया। अब मुझे नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर फाइंड करनी है कि फॉर द फ्रैक्चर क्या करना है। तो फ्रैक्चर के लिए क्या चाहिए होगा, मेरे पास ग्रॉस एरिया है, मुझे पहले चाहिए नेट एरिया। ग्रॉस एरिया से निकालूंगा नेट एरिया और नेट एरिया से फिर इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव नेट एरिया निकालूंगा। सो ग्रॉस एरिया से नेट एरिया निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ होल्स माइनस करने हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ होल्स क्या और कितने होल्स, 4 होल्स माइनस करना है या 2 होल्स का माइनस करना है। अब चांसेस क्या, फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, मैं अगर इस प्लेट को इधर पुल करूँ तो देर आर चांसेस, क्या चांस है कि इधर से क्रैक डेवलप हो, इधर से इस प्लेट में क्रैक डेवलप और फेल हो जाए और टूट जाए, ये ऐसा। ये चांसेस क्या है कि ये रीजन क्रिटिकल है कि इधर से क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाए क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं, और इधर से क्रैक डेवलप हो, इनिशिएट हो और यहाँ से परसिस्ट हो और ये ऐसा कट हो जाए और ये प्लेट अलग हो जाए। सो क्रिटिकल रीजन इज, एक क्रिटिकल रीजन में कितने होल्स आ रहे हैं, 2 होल्स आ रहे हैं। अगर लाइन ऐसे होती कि जिसमें 3 होल्स होते तो दैट रीजन वुड हैव बीन क्रिटिकल और फिर हम 3 होल्स का एरिया माइनस करते हैं, जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक आध करेंगे। सो रीजन क्या क्या ग्रॉस एरिया है, उसमें से मुझे ये 2 होल्स का एरिया माइनस करना है, ठीक है, तब मेरे पास नेट एरिया बचेगा। अब याद रखिएगा मुझे होल्स का एरिया माइनस करना है, ठीक है। अब होल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले होल का डाया पता करना है, और होल का डाया के लिए क्या चाहिए, मुझे बोल्ट का डाया पता होना चाहिए। सो बोल्ट का डाया क्या है, दैट इज़ 5/8 इंचेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसमें कुछ मार्जिन एडिशनल रखते हैं, तो अगर बोल्ट का डाया है 5/8 इंचेस और अगर आपको नहीं मेंशन है भाई किस किस्म का होल ड्रिल करना है, स्टैंडर्ड करना है, शॉर्ट स्लॉटेड, लॉन्ग स्लॉटेड, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि जो बोल्ट का डाया दैट इज़ 5/8 इंचेस, उसमें एक एडिशनल कितना ऐड कर देना है, +1/8। बोल्ट के डाया में +1/8 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5/8 + 1/8 दैट इज 6/8, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 3/4 इंचेस। सो मेरे पास होल का डाया कितना बच जाएगा, दैट इज 3/4 इंचेस, ठीक है। तो 3/4 इंच होल का डाया और फिर मैं उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये होल का एरिया, होल का डाया और होल की थिकनेस, जितनी प्लेट की थिकनेस होगी उतनी ही उसकी होगी। सो मैं अगर 3/4 और मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूंगा तो मेरे पास एक होल का एरिया माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास होल्स कितने आ रहे हैं, 2 होल्स आ रहे हैं, तो इसमें से मैं अगर जब इस पूरी प्लेट की क्रॉस सेक्शन में से 2 होल के एरियाज मुझे माइनस करना है। सो ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स, सो ग्रॉस एरिया वॉज 2.5 इंच स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ होल्स, ये एक होल का एरिया दैट इज थिकनेस इनटू डाया ऑफ द होल और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे चूंकि 2 होल्स हैं, सही है। सो ग्रॉस एरिया माइनस एरियाज ऑफ होल्स, तो मेरे पास आ जाएगा नेट एरिया आ गया, सही होगा, यहाँ तक होगा। अब याद रखिएगा नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्ड फ्रैक्चर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया कितना होना चाहिए, इफेक्टिव एरिया मैंने आपको बताया था जब हम नेट एरिया को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, शियर लाइफ फैक्टर से, तो हमारे पास इफेक्टिव एरिया आता है। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हमें गिवन है कि अज्यूम दैट द इफेक्टिव नेट एरिया इज इक्वल टू द एक्चुअल नेट एरिया, कि जितना एक्चुअल नेट एरिया इफेक्टिव नेट एरिया भी उतना ही है, तो जितना ए एन होगा उतनी ही वैल्यू ए ई की आ जाएगी। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय ए ई दैट कम्स आउट टू बी नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर। यहाँ तक क्लियर। अब क्या किया, सिंपली हमने क्या करना है, इनके रिडक्शन फैक्टर या रेजिस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द केस ऑफ यील्डिंग हम क्या करेंगे, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर हम ये जो हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की उसको हम उसके रिडक्शन फैक्टर दैट वाज 0.75 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी इस मेंबर की, डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग कितनी आ जाएगी, 81 किप्स। डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर हमारे पास कितनी आ जाएगी, जब हमने इससे फैक्टर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 76.1 किप। अब जब आपसे पूछ जाएगा भाई इस मेंबर की एज पर LRFD मेथड डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप कौन सी बताएंगे, जो कम होगी, स्मॉलर ऑफ दिस, कि शील्डिंग कितने पे हो रहा है, शील्ड कितने पे हो रहा है 81 किप्स पे, और फ्रैक्चर कितने पे हो रहा है 76.1 किप। सो टू बी ऑन द सेफर साइड कि हाँ भाई फ्रैक्चर पहले करेगा, तो देयरफॉर इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है इस मेंबर की, दैट इज 76.1 किप्स। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन LRFD इज द स्मॉलर वैल्यू एंड दैट इज 76.1 किप। ASD के लिए क्या करेंगे, ASD के लिए भी प्रोसीजर मोर लेस सेम है, उसी तरीके से ग्रॉस एरिया फाइंड किया और उसी तरीके से हम नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग हम फाइंड करेंगे, और वो कैसे करेंगे, FY इंटू AG, जैसे कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं। सिमिलरली फॉर द फ्रैक्चर हमें नेट एरिया निकालना है, और ये इट इज़ एक्जैक्टली द सेम जैसे LRFD में किया, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स किया, और फिर हम हमारा जितना नेट एरिया था उतना ही इफेक्टिव एरिया था, हम ये कैलकुलेट कर चुके। सो यहाँ तक एक्जैक्टली सेम है जैसे LRFD है। सिंपल डिफरेंस क्या है कि इसमें हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, उधर हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इधर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं।
विच इन दिस केस इज 1.67। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 0.6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 1.67 से डिवाइड कर दिया और इधर 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, अलाउबल स्ट्रेंथ। याद रखिएगा इसके लिए टर्म यूज होती है अलाउबल स्ट्रेंथ। सो अलाउबल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग कितनी होगी, दैट वुड बी 53.9 किप्स, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, बेस्ड ऑन जो फ्रैक्चर होगा दैट वुड बी 50.8 किप्स। देन अगेन एग्जैक्टली अलाउबल सर्विस लोड कितना हो जाएगा एज पर ASD, दैट वुड बी द स्मॉलर ऑफ द वैल्यू, दैट इज 50.8 किप्स। सो हमारे पास सोल्यूशन आ गया जो हमें रिक्वायर था। हमें ये रिक्वायर था कि आपने डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी फॉर LRFD, दैट वाज 76.1 किप्स, एंड अलाउबल स्ट्रेंथ फॉर ASD अगर मेथड से फाइंड करो तो 50.8 किप्स हो जाएगा। दोनों अलग अलग ऑपरेटर हैं और आप देख सकते हो कि इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे इसमें जो सेफ्टी मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा है अलाउबल स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड में। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है, यही प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करेंगे। हमारे पास क्या है कि एक अ सिंगल एंगल टेंशन मेंबर, ठीक है। एज डिस्कस इन द क्लास हमारे पास जो स्टील सेक्शन होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, दैट वाज एंगल सेक्शन होते हैं, हम इसको L शेप में भी बोल सकते हैं, चैनल सेक्शन होता है, W सेक्शन होता है, S सेक्शन होता है, डिफरेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अ सिंगल एंगल टेंशन मेंबर जिसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, एन L 3.5 into 3/8 is connected to a gusset plate, वो गजट प्लेट से कनेक्टेड है विद 7/8 इंच डाया बोल्ट्स। बोल्ट का डाया कितना है 7/8, याद रखिएगा ये बोल्ट्स का डाया दैट इज 7/8 इंचेस। A36 स्टील यूज हुआ है। अब क्या कहना चाह रहा है, सर्विस लोड, इसके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमें लोड्स कुछ किए बने थे, हमें सिर्फ फाइंड करनी थी डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी LRFD और अलाउबल स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी एज पर ASD। बट यहाँ से क्या रिक्वायर कर रहा है कि भाई इतना लोड आ रहा है, this much is the dead load, this much is the live load 15 kips, और kindly investigate करें कि whether this member is safe as per AISC specification। in specification AISC stands for American Institute of Steel Construction, ठीक है। इनका एक मैनुअल है और वो स्पेसिफाई करता है कि व्हाट कोई भी एक स्टील स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करना है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ है। ये मैनुअल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। एज पर AISC स्पेसिफिकेशन वेदर दिस मेंबर इज सेफ और नॉट, सिंपली आपने ये बताना है। और आपको ये बता दिया कि जो आपका नेट एरिया, इफेक्टिव नेट एरिया है, वो एक्चुअल नेट एरिया कितना है 85% है, ठीक है। अच्छा, और देन अगेन दोनों मेथड से आपने बताना है कि LRFD और ASD। तो सबसे पहले अगर कनेक्शन देख लें, हमारे पास क्या है कि एक एंगल सेक्शन है और वो कनेक्ट हुई पड़ी है एक गजट प्लेट के साथ। अब एंगल का नेम क्या है 3.5 एंड 3/8। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ 3.5 एंड 3/8, ठीक है। इसमें L स्टैंड्स फॉर उसकी शेप है एंगल सेक्शन, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड दैट इज कनेक्टेड टू द जैसे क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है कि बोल्ट से एक हुआ पड़ा, ठीक है। अब इसमें 3.5 क्या है, ये इसकी एक लेग की डायमेंशन है। एक लेग की डायमेंशन कितनी है कि 3.5 इंचेस, 3.5 अनदर वन, इधर से लेकर इधर तक की जो डायमेंशन है दैट इज 3.5 इंचेस। इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है 3.5 इंचेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है 3.5 इंचेस। और 3/8 क्या है, 3/8 क्या है, इसकी जो लेग्स की थिकनेस है, इस लेग की थिकनेस कितनी है 3/8 इंच, 3/8 इंच। तो ये एंगल सेक्शन है और इसको कनेक्ट किया हुआ हमने इस गजट प्लेट के साथ और किसकी मदद से किया, ये बोल्ट के साथ हो गया, ठीक है। सो ये आपको ये नज़र आ रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से देन अगेन अगर मुझे नॉमिनल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है इन यील्डिंग तो मुझे क्या चाहिए था FY इंटू AG, ठीक है। FY तो मुझे पता चल गया, FY क्या होती है, A36 स्टील है तो उसके लिए कितना है 36 KSI। अब ग्रॉस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियसली क्या था प्लेट मेंबर था, तो प्लेट मेंबर के लिए तो मेरे पास डायरेक्टली मैं फाइंड कर सकता था, प्लेट की विड्थ थी और प्लेट की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया। अब एंगल सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए चूंकि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैनुअल भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा इजी क्या है कि AISC मैनुअल में डिज़ाइन टेबल्स भी बना है, ठीक है, डिज़ाइन डेट्स गिवन है और उसमें इस मेंबर की प्रॉपर्टी सारी गिवन होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली डिज़ाइन मैनुअल में जाना है और इस सेक्शन का जाके क्रॉस एरिया देख लेना है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। आपने डिज़ाइन मैनुअल खोला, जैसे ये मैंने खोल रखा है और ये एक पूरा डिज़ाइन मैनुअल है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेक्शन होंगे, एंगल सेक्शन होंगे, चैनल सेक्शन होंगे और डिफरेंट बहुत सारे बने होंगे जब आप इन टेबल्स के थ्रू जाएंगे। और मैं इसमें जाता हूँ और मेरे पास ये एक एंगल सेक्शन है और ये इसमें जाकर देखना कि मेरा एंगल सेक्शन कौन सा था, मेरा एंगल सेक्शन था 3.5 और हाफ नहीं 7/16 नहीं 3/8 इंचेस,
ये वाला था। सो मैं इधर से आऊँगा ऐसे और ये इधर आ जाऊँगा 3/8 इंचेस पे, और इधर जाके इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसका यूनिट वेट गिवन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सेक्शन मोमेंट, सब कुछ गिवन है। मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है, मुझे इसका ग्रॉस एरिया में चाहिए। तो ये इसका एरिया, और इसमें आऊँगा और ये 3.5 और 3/8 में है, तो ये मेरे पास ये जो एरिया है दैट इज द ग्रॉस एरिया फॉर दिस पर। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शन है, डब्ल्यू सेक्शन होगा, अगले क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करें। तो दिस इज द ग्रॉस एरिया, तो ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्रॉस एरिया। सही हो गया। तो हमारे पास ग्रॉस एरिया कितना बचता है, दैट इज 2.48 इंच के, ये हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया। और जब मैं इस ग्रॉस एरिया को यील्डिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरे पास यील्डिंग आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें फ्रैक्चर चाहिए। फ्रैक्चर के लिए फ्रैक्चर जिसकी डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है अगेंस्ट फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के लिए हमें क्या चाहिए था, इफेक्टिव एरिया, और इफेक्टिव एरिया से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट एरिया। अब नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें क्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ होल्स माइनस करने हैं। अब जैसे इसको क्लियरली ऑब्जर्व करना है कि जैसे अगर मैं इस एंगल सेक्शन को, जैसे प्लेट को मैं पुल करूँ तो चांसेस क्या हैं कि या तो क्रैक इधर डेवलप हो, ये पार्ट अलग हो जाए, चांसेस क्या हैं कि एक क्रैक ऐसे ओरिजिनेट हो, ठीक है, इस होल में से पास करता हुआ, और इधर से हो जाए, इधर से हो जाए, इधर से हो जाए। अब इसमें से मुझे कितने होल के एरिया माइनस करने हैं। याद रखिए क्रैक कुछ ऐसे डेवलप हो रहा है, यूँ जिगजैग क्रैक आएगा और इसमें से पास करता हुआ ऐसे आ जाएगा। तो मुझे एट अ टाइम कितने होल्स का एरिया माइनस करना है, 3 का नहीं, सिर्फ एक होल का एरिया माइनस करना है, चूँकि क्रैक इधर से डेवलप हो रहा है, क्रैक ऐसे नहीं डेवलप हो रहा। अगर मैं प्लेट को इधर से पुल करूँ तो फिर चांसेस हैं कि क्रैक ऐसे डेवलप हो और फिर मुझे इन 3 होल्स का एरिया माइनस करना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूँकि फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, तो देयरफॉर चांसेस ये हैं कि क्रैक इधर से इनिशिएट होगा ऊपर से, और इधर से चांसेस होता है, देयरफॉर आई नीड टू सब्ट्रैक्ट ओनली वन होल एरिया। तो हमारे पास क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया माइनस होल एरिया। देन अगेन होल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बोल्ट का डाया प्लस एक मार्जिन रखूंगा, तो मेरे पास होल का डाया होगा, और मल्टीप्लाई बाय जब मैं इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास होल का एरिया आ जाएगा। सो होल का एरिया कैसे किया, बोल्ट का डाया क्या था 7/8 इंचेस, उसमें मार्जिन ऐड कर दिया प्लस 1/8, तो ये मेरे पास होल का डाया बन गया। बोल्ट डाया प्लस 1/8 दैट कम्स आउट टू बी होल डाया। अब होल का जो डाया है उसको मैं उस एंगल सेक्शन की थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा। अब एंगल सेक्शन की थिकनेस कहाँ से आएगी, वो ये जैसे कि आपको नेम में शो हो रहा है, दैट इज 3/8 इंचेस। ठीक है, सो आप क्या करोगे, होल का डाया मल्टीप्लाई पे प्लेट थिकनेस या एंगल सेक्शन थिकनेस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक होल का एरिया आ जाएगा, और हमें याद रखिएगा एक होल ही का एरिया माइनस करना है। सो ग्रॉस एरिया माइनस होल एरिया दैट कम्स आउट टू बी नेट एरिया। और नेट एरिया अब आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इफेक्टिव एरिया। प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था कि जितना एक्चुअल नेट एरिया था, इफेक्टिव नेट एरिया भी उतना ही था। हाउएवर इन दिस केस उसने बताया कि इफेक्टिव नेट एरिया इज 85% ऑफ एक्चुअल नेट एरिया। सो जो हमने नेट एरिया कैलकुलेट किया है दैट इज 2.105, उसको हम उसका 85%, दैट मीन्स उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड कम आउट विद द इफेक्टिव एरिया। सही हो गया, तो हमारे पास इफेक्टिव एरिया आ गया। और जब मैं उस इफेक्टिव एरिया को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट या डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर। सही हो गया, तो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ जब अगेंस्ट फ्रैक्चर आ गई वो 103.8 आ गई। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता देता हूँ कि A36 स्टील की यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है 36 KSI, दैट इज फिक्स्ड, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी कितनी होती है 58 KSI। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई अगेंस्ट यील्डिंग अगेंस्ट फ्रैक्चर। अब मुझे एज पर LRFD इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको उसके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ यील्डिंग 0.9, इन केस ऑफ फ्रैक्चर 0.75। तो सिंपली क्या किया, नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग आ जाएगी 80.4 किप्स। और अगेंस्ट फ्रैक्चर क्या हो जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 से, तो मेरे पास आ जाएगी 77.9 किप्स। सो आई कैन सेफली से कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन इनमें से कौन सी होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ इस सेक्शन की कितनी आ गई, दैट इज 77.9 किप्स। दैट मीन्स वो फ्रैक्चर पहले हो रहा है, तो दैट मीन्स मैं इससे कहूँगा कि इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ इतनी है, ये मेंबर इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है इससे पहले कि वो फ्रैक्चर हो जाए। ठीक हो जाएगा। अब आपसे क्या रिक्वायर किया गया, आपसे ये नहीं रिक्वायर किया गया कि आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें, आपसे ये रिक्वायर किया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो करंट लोड्स आ रहे हैं, डेड लोड और लाइव लोड, वेदर दिस मेंबर इज सेफ और नॉट। ठीक है, तो अब आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उसके लिए ये है क्या कि हमने ये कर लिया, हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ पता चल गई। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर लोड्स कितने आ रहे हैं, पी यू की कितनी वैल्यू आ रही है, अल्टीमेट लोड।
LRFT में हम क्या करते हैं कि हम अल्टीमेट लोड्स फाइंड करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, हम जो लोड्स होते हैं उनको जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो इन केस ऑफ दो तरह के कनेक्शन है फॉर LRFD. अगर डेड लोड और लाइव लोड है तो दो कनेक्शन हो जाएंगे, दो तरह के कॉम्बिनेशन हैं. सॉरी, पहला कॉम्बिनेशन होगा 1.4 टाइम्स डेड, दैट इज 1.4 टाइम्स डेड लोड है, तो कितना अल्टीमेट लोड कितना बन जाएगा 49 किप्स. और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव. तो उसमें क्या हो जाएगा 1.2 डेड 1.6 लाइव, उसके हिसाब से अल्टीमेट लोड कितना पाना है 66 किप्स. तो इनमें से ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो कंसिडर करेंगे. सेकंड कॉम्बिनेशन अल्टीमेट लोड कितना आ रहा है 66 किप्स, हमारे मेंबर की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है 77.9 किप्स. सो देयरफॉर सिंस 66 किप इज लेस देन 77.9 किप्स, तो देयरफॉर मेंबर इज सेटिस्फैक्टरी एज पर LRFD. इस मेथड से मेंबर सेफ है. अब चलेंगे हमारे पास ASD मेथड से. अब ASD मेथड से हमें पहले तो अलाउबल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है और फिर अलाउबल लोड्स कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि वो उससे कम है कि नहीं. अलाउबल लोड के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें पता था नॉमिनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग को 1.67 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते थे, तो हमारे पास क्या आ जाती थी अलाउबल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग दैट इज 53.5 किप्स. ये वैल्यू कहाँ से प्रीवियस स्लाइड से हम कैलकुलेट कर चुके हैं. और अगेंस्ट फ्रैक्चर हम क्या कहते हैं अलाउबल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर जो हम फाइंड करने, तो हम क्या करें नॉमिनल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी अलाउबल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर. ठीक हो गया. अब इसमें देख सकते हो कि कौन सी वाली वैल्यू कम है, इसमें अलाउबल स्ट्रेंथ कम है दैट इज 51.9 किप्स. तो हमारे पास इस मेंबर की अलाउबल स्ट्रेंथ कितनी आ गई 51.9 किप्स. अब हमने इसको कंपेयर करना है अलाउबल लोड से. ठीक है, इन ASD हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से या किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते जैसे प्रीवियसली इन केस ऑफ LRFD 1.2 डेड और 1.6 लाइव था. इसमें हम सिंपली क्या करते हैं सर्विस लोड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. और सर्विस लोड कॉम्बिनेशन क्या मतलब जितना लोड आ रहा है वो ही कंसिडर करेंगे. तो डेड लोड कितना था 35, लाइव लोड कितना था 15, इनको ऐड किया वी कम अप विद द 50 किप्स. सो दिस इज द अलाउबल लोड. और सिंस 50 किप ये जो अलाउबल लोड है दिस इज लेस देन द अलाउबल स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर, तो देयरफॉर मेंबर सेटिस्फैक्टरी है एज पर ASD भी हमारे पास मेंबर सेफ है. सही हो गया. सो दैट इट इज दोनों अप्रोचेस से हमने चेक कर लिया कि इट इज़ सेफ. दिस इज़ द थर्ड प्रॉब्लम. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, उसी तरीके से ही होगा. इसमें सिंपली क्या है कि आपको डबल एंगल सेक्शन गिवन है और वो है कौन से वाला, वो ये आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है. देन अगेन 2L स्टैंड फॉर डबल एंगल, 5 इज़ द लेंथ, 3 इज़ द विड्थ, 5/16 इज़ द थिकनेस. ठीक है, डबल एंगल सेक्शन है. और वो ये कहना चाह रहा है कि ये मेंबर खुद ही ये किसी गजट प्लेट के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जैसे आपको नज़र आ रहा है और उसको मैं पुल कर रहा हूँ, उस पर टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है. तो व्हाट आर द चांसेस कि क्या हो सकता है कि या तो यील्ड कर जाए मेंबर या फिर ऐसे फ्रैक्चर कर जाए, इधर से क्रैक डेवलप हो. तो आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ एज पर LRFD फाइंड करनी है और अलाउबल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे कि एग्जांपल 1 में हमने किया था. ठीक है, उसमें प्लेट था, इसमें डबल एंगल सेक्शन है. रेफरेंस गिवन है, यू कैन गो थ्रू दिस बुक. सी हमारे पास चूँकि हमारे पास मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली कि 2 कोर्स बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं. वन इज़ द विलियम टी सेगॉय 4th एडिशन एंड अनदर वन इज़ द मैकॉर्मिक. ठीक है, सो आप जाकर देख भी सकते हैं और आप क्लियरली आपको यू शुड बी इंशाल्लाह गुड इनफ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है. सही है. देन वी गोना कम अप टू द इफेक्टिव एरिया. अब जब बात आई कि इफेक्टिव एरिया का फ़र्क क्या था, व्हाट वाज दैट लैग फैक्टर. सो हमारे पास क्या होता है कि जब भी एक कनेक्शन डेवलप होता है, ठीक है, जब भी मैं एक प्लेट है और उसको मैं किसी दूसरी प्लेट के साथ या गजर प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जब कोई एंगल सेक्शन उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जब भी एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है तो देयर वुड बी सम वीकनेस. ठीक है, कोई ना कोई वीक प्लेन एक इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, मेंबर की वो स्ट्रेंथ नहीं रहती अगर मेंबर थ्रू आउट सेम कॉन्टिन्यूस रहे बजाय इसके जहाँ पे एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है. So when the flow of tensile stress between full member cross section and the smaller connected area cross section is not 100%, the section becomes ineffective in transmitting the stress. मतलब ये कि अगर मैं इस प्लेट पे या इस एंगल सेक्शन पर लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो जो स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं इंटायरली जितने ये स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं वो यहाँ तक ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि एक कनेक्शन आ रहा है. ठीक है, और उस कनेक्शन वो क्या कह रहा है कि एक इनएफिशिएंसी इंट्रोड्यूस करा देता है. ठीक है, कंपेयर टू कि अगर ये थ्रू आउट एक ही मेंबर होता तो जितने स्ट्रेसेस यहाँ थे उतने ही उसी तरह होते. तो दस वी रिड्यूस द एरिया, हम उस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं. जो हमारे पास नेट एरिया था, क्रॉस एरिया में से हमने एरिया ऑफ होल्स माइनस किया और एरिया ऑफ होल माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है नेट एरिया. अब नेट एरिया भी
अगर खाली होल्स इधर इंट्रोड्यूस होते तो नेट एरिया बचता, बट अब चूंकि ये कनेक्शन है तो हम क्या करते हैं, इस नेट एरिया को फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ट्रांसफर स्ट्रेसेस फुली तरीके से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको जॉइंट इनएफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। दस वी रिड्यूस द एरिया और हम उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, शेयर लाइक फैक्टर, और वो हमारे पास बच जाता है, इफेक्टिव नेट एरिया बच जाता है, ठीक है। अब जॉइंट इनएफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है? जॉइंट इनएफिशिएंसी क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि भाई किस वजह से पूरे स्ट्रेसेस या फुली स्ट्रेसेस ट्रांसफर नहीं हो पाते दूसरे कनेक्शन के बाद। सो इट कुड बी ड्यू टू फास्टनर स्पेसिंग, जो हम बोल्ट जो हमने ड्रिल किए उनके दरमियान स्पेसिंग इरेगुलर हो, मतलब यूनिफॉर्म स्पेसिंग ना हो। लेट्स से इट्स नॉट नेसेसरी कि इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग यूनिफॉर्म हो, ठीक है। शायद बोल्ट्स ड्रिल करते होल ड्रिल करते कुछ ना कुछ इनमें इनएक्यूरेसी आ जाती है। दैन अगेन फैब्रिकेशन प्रोसीजर में मसला हो सकता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होल्स पे ज़्यादा हो जाती है, डक्टिलिटी का मसला हो सकता है, शेयर लैग भी इशू हो सकता है, ठीक है। अब बात आ रही है शेयर लैग की। व्हाट इज़ द शेयर लैग? शेयर लैग ये है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक एंगल सेक्शन है और मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ इस गज़ट प्लेट के साथ, ठीक है। अब चूँकि अगर ये जो एक मेंबर है इस पर जब मैं फुली लोड अप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं फुली लोड अप्लाई करूँ यहाँ तक तो क्या हो रहा है कि इस मेंबर का ये वाला पोर्शन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इसमें भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं और इसमें भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट जब बात आ गई इस कनेक्शन एरिया पे, इस ट्रांजिशन रीजन पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पूरा मेंबर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन एक लेग कनेक्टेड है। अगर तो दोनों लेग कनेक्टेड होती तो हमारे पास जितना नेट एरिया था इफेक्टिव एरिया भी उतना ही रहता, ठीक है। अब चूंकि पूरा क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड नहीं है इस प्लेट के साथ, सिर्फ कुछ पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा कि इस रीजन में स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस लेग वुड बी ओवर स्ट्रेस, ठीक है, और ये जो रीजन हो जाएगा ये इसमें उतने स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते, ठीक है। तो इस वाले में चांसेस ये हैं कि इसमें यील्ड स्ट्रेस से हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो जब ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, इस ओवर स्ट्रेस रीजन को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नेट एरिया बचते हैं, हम नेट एरिया को शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम उसको फर्दर खुद रिड्यूस कर देते हैं, एक अनदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम रख देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में देखें हमारे पास क्या गिवन था, एक होता है ग्रॉस एरिया, और ग्रॉस एरिया में से जब हम एरिया ऑफ होल्स माइनस किया तो हमारे पास नेट एरिया बच गया। उस नेट एरिया को हम फर्दर एक शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं यू से, ठीक है। और वो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम करते हैं तो हमारे पास बचता है इफेक्टिव एरिया, ठीक है। अब शेयर लैग फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई एल। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द शेयर लैग फैक्टर। मैं फिर से क्लियर करता हूँ कि शेयर लैग फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप यहाँ तक देखें, जैसे ये एक एंगल सेक्शन है और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ इस एक गज़ट प्लेट के साथ, जहाँ पे कनेक्शन नहीं था फोर्स अप्लाई की, यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, जितने इस लेग में हो रहे हैं उतने ही इस लेग में हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, दैट वाज यूनिफॉर्म। हाउएवर जैसे ही कनेक्शन वाला रीजन आ गया जहाँ पे कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो गया, तो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है कि इस जगह पर स्ट्रेसेस नहीं रहते, क्योंकि ये फ्री हो गया, ये किसी प्लेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इस जगह साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्शन है। तो स्ट्रेसेस जितनी भी हो जाएंगी वो इस जगह पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अकर होना शुरू हो जाती है, खाली नीचे वाली लेग पे, ठीक है। तो चूंकि नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है, इस वजह से स्ट्रेसेस इस जगह पर बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेसेस बढ़ जाने की वजह से हम क्या करते हैं कि नेट एरिया यूज़ करने के बजाय हम एक इफेक्टिव एरिया यूज़ करते हैं, मतलब हम फर्दर खुद अपने एंड पे फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम उस नेट एरिया को फर्दर एक रिड्यूस कर देते हैं शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। अगर तो ये दोनों लेग्स कनेक्टेड होती हैं देन नेट एरिया वुड हैव बीन इक्वल टू द इफेक्टिव नेट एरिया, बट चूंकि सिर्फ एक कनेक्शन है, एक लेग कनेक्टेड है, तो देयरफॉर हम यू से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर लैग फैक्टर से, और हम उसके बाद इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करेंगे। सही हो गया। इसका फार्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई एल। अब इसमें एक्स डैश क्या है, एक्स डैश इज द डिस्टेंस जहाँ से कनेक्शन, लेट्स से यहाँ पे कनेक्ट हुआ पड़ा ना, जैसे कि आपको प्लान में नजर आ रहा है कि बोल्ट इधर ड्रिल हो, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स डैश क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है इधर से लेकर जहाँ कनेक्शन लाइन है यहाँ से लेकर इस एंगल सेक्शन का एक सेंट्रॉइड होगा, वो इस जगह पर लाई कर होगा, जैसे कि आपको इधर से नजर आ रहा है, फ्रंट व्यू से आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा कि ये एंगल सेक्शन है और इसको मैंने गजल पर अक्सर ड्रिल किया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, और ये आपको डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, देन अगेन आप उधर ही जो डिज़ाइन एड है उधर टेबल में आप जाकर देखोगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर जहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दिस वुड बी एक्स डैश, ठीक हो गया। और एल क्या होगा, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, ठीक है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन जो
फर्स्ट वाला जो होल है और जो लास्ट वाला हो जाएगा, इनके दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द कनेक्शन. इज दैट क्लियर? ठीक है. अगर वेल्ड होगा तो फिर हम वो पूरी वेल्ड की लेंथ यूज़ करेंगे. जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक फर्स्ट वाला बोल्ट और ये लास्ट वाला बोल्ट है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो लेंथ हो जाएगा दिस इज द लेंथ ऑफ द कनेक्शन एंड दिस इज द एक्स डैश. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द जहाँ पे कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है टू द सेंट्रॉइड ऑफ दैट रीजन हो जाएगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाय एल हो जाएगा. फॉर द बोल्ट हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव एरिया हम क्या करते हैं, हम नेट एरिया को शेयर लाइक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ द इफेक्टिव एरिया. और द फॉर द जो वेल्ड कनेक्शन हो जाएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, वेल्ड कनेक्शन के लिए हम ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि वेल्ड में तो कोई होल्स ड्रिल ही नहीं करते. ठीक है. सो इसमें कोई जब होल ड्रिल ही नहीं हो रहे तो हमारे पास क्या बचेगा, ग्रॉस एरिया इनटू शेयर लाइक फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास इफेक्टिव एरिया आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी. ठीक है. एक्स डैश जैसे आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज एक्स डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ कनेक्टेड एरिया टू द प्लेन ऑफ द कनेक्शन. मतलब ये कि जहाँ से कनेक्ट हो रहा है और जहाँ पे उसका सेंट्रॉइड है इसके दरमियान जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्स डैश हो जाएगा. इसमें डिफरेंट आपको शेप्स नजर आ रही हैं, जैसे एक एंगल सेक्शन है, जैसे ये डबल एंगल सेक्शन है. ठीक है. उसके अलावा आपके पास ये डब्ल्यू सेक्शन है, इसका सेंटर जहाँ से कनेक्शन लेकर जहाँ तक. ठीक है. देन अगेन डिफरेंट शेप्स हैं. अब कैसे फाइंड आउट करना है, यू की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट केसेस हैं. ठीक है. अगर राउंड शेप है, स्टील शेप्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एच सेक्शन है, ठीक है, और अगर डब्ल्यू सेक्शन है, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं. और उधर से हमें उसने बताया हुआ कि अगर वैल्यू यू की वैल्यू ये होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब को सम अप किया हुआ है. और जैसे मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा नेक्स्ट इन द कमिंग स्लाइड. ठीक है. वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे और डिफरेंट केसेस बनाती हैं कि अगर एंगल सेक्शन है तो फिर कौन सी फार्मूला यूज़ करना है. जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एल इज़ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन. ठीक है. इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है. तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कनेक्शन जैसे ये एक हो जाएगा. ठीक है. जैसे ये एक बोल्टेड है एग्जांपल है, जैसे एक वेल्ड है, वेल्ड भी हो सकता है कनेक्शन. तो एल इज़ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, इसमें ये वेल्ड ऑफ कनेक्शन हो जाएगी. अगर इक्वल लेंथ है तो ये हो जाएगी, और अगर अनइक्वल वेल्ड्स है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो बड़ी वाली लेंथ होगी कनेक्शन की वो वाली यूज़ करेंगे. सही होगा. एंड इट ऑल कम्स डाउन टू दिस थिंग. ये डिफरेंट केसेस हैं कि अगर मेंबर ये हो तो फिर यू की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, शेयर लैग फैक्टर. ठीक है. और ये मैककॉर्मिक की बुक में गिवन है. ठीक है. मैं आपको मैककॉर्मिक की बुक भी आपके साथ शेयर करूँगा. और डिफरेंट केसेस गिवन है कि आपने शेयर लैग फैक्टर क्या वैल्यू यूज़ करनी है. ठीक है. और डिफरेंट सिनेरियोज गिवन है. अगली प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें जब वैल्यू कैसे लेंगे इस टेबल से, मैं आपको उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे आपका पहला केस क्या है कि अगर तो मेंबर, ठीक है, फुली कनेक्टेड है, मतलब सारा ही क्रॉस सेक्शन उसके साथ फुली कनेक्टेड है, तो फिर तो यू की वैल्यू 1 होगी. दैट मीन्स नेट एरिया भी उसी के बराबर होगा जितना, इफेक्टिव एरिया भी उसी के इक्वल होगा जितना नेट एरिया था. अगर कोई और केस है, कोई एक हाफ कनेक्टेड है और कोई भी शेप है, तो 1 माइनस एक्स बाय एल ये फार्मूला यूज़ होगा. ठीक हो गया. देन अगेन अगर स्पेसिफिक कर देता है कि राउंड एच एच सेक्शन है तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है. रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है. अगर डब्ल्यू सेक्शन है, ये केस बन रहा है, तो फिर यू की वैल्यू ये होगी. देन अगेन इन द कमिंग एग्जांपल आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द टेबल शेयर लैग फैक्टर फाइंड करने के लिए ये वाली टेबल इज़ द इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है. अब जैसे हम ये आ जाते हैं. ठीक है. आपने क्या फाइंड आउट करना है, मेन प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. इजी था. जैसे अभी तक हम ये कर चुके हैं कि हमने डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड की इन यील्डिंग अगेंस्ट यील्डिंग, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन फ्रैक्चर हमने फाइंड करनी है LRFD से भी, और अलाउबल स्ट्रेंथ भी हमने फाइंड की. और मेन क्या चीज़ थी, एक ही चीज़ फाइंड आउट करने की क्रिटिकल थी कि किसी तरीके से आप इफेक्टिव नेट एरिया कैलकुलेट कर सकें. और इफेक्टिव नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेन क्या चीज़ है कि आपको शेयर लैग फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए. सही हो गया. सो जैसे अब आपके पास ये एग्जांपल है. ठीक है. तो जैसे ये एक कनेक्शन है, हमारे पास क्या हुआ कि एक एंगल सेक्शन है. ठीक है. और एंगल सेक्शन की प्रॉपर्टीज गिवन है 6/6 बाय हाफ. अब तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि 6/6 का मतलब इंटू हाफ का मतलब क्या है. 6 इज़ द, मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 इज़ द लेंथ ऑफ दिस लेग 6 इंचेस, लेंथ ऑफ दिस लेग इज़ द 6 इंचेस एंड हाफ इज़ द थिकनेस ऑफ दिस लेग. ठीक है. बोथ लेग्स हो जाएगा. सो ये एक एंगल सेक्शन है एंड दैट इज कनेक्टेड टू दिस गजेट प्लेट. ठीक है. और किस चीज़ से कनेक्ट हुआ पड़ा है, बोल्ट्स के साथ. और बोल्ट्स का साइज़ क्या है 5/8 इंचेस. और बोल्ट्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है दैट इज़ 3 इंचेस. ठीक हो जाएगा. 3 इंचेस ईच हो जाएगा.
अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है इफेक्टिव नेट एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसे आपको क्लियरली गिवन है, ठीक है, इफेक्टिव नेट एरिया फाइंड करने के लिए तो पहले तो आप क्या करोगे, ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करोगे। और ग्रॉस एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ग्रॉस एरिया देन अगेन आपने क्या करना है, एंगल मैनुअल में जाना है और मैनुअल में जाकर देखना है कि भाई इसका ग्रॉस एरिया कितना है, जैसे मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए ये एक और कर देता हूँ, इसके लिए फाइंड आउट कर देता हूँ और देन अगेन होपफुली इसके बाद आप खुद ही कर पाएंगे, ठीक है। सो आपने जाना है डिज़ाइन एड में और डिज़ाइन एड में जाके आपने देख लेना है कि 6x6 इंटू हाफ, ठीक है, और उसका जाके आपने ग्रॉस एरिया इधर से जाकर देख लेना है कि भाई इसका ग्रॉस एरिया कितना बन रहा है। जैसे हमारे पास ये आता है 6x6 इंटू हाफ और इसका ग्रॉस एरिया कितना बन रहा है 5/6, 6/6 और इधर से नीचे आ जाएगा 1 7/8 3/4 और इधर आता है हाफ और इसका ग्रॉस एरिया कितना बन रहा है 5.77 इंच स्क्वायर, तो इसका ग्रॉस एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने ग्रॉस एरिया इधर से ग्रॉस एरिया में से पहले नेट एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ होल्स माइनस करना है। अब देन अगेन होल्स का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करोगे कैलकुलेट, ठीक है। होल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बोल्ट का डाया जो भी गिवन है 5/8 इंचेस और उसमें प्लस 1/8 कर देंगे तो हमारे पास होल का डाया आ जाएगा और फिर इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो होल का एरिया आ जाएगा। और कितने क्रिटिकल, एक क्रिटिकल क्रैक डेवलप होगा, जैसे इधर से डेवलप हो सकता है, इधर से डेवलप हो सकता है, इधर से, तो एक क्रिटिकल रीजन में कितने होल्स आ रहे हैं, 2 होल्स आ रहे हैं, तो 2 होल के एरिया माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाया ऑफ होल दैट मीन्स बोल्ट का डाया प्लस 1/8 और उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो दैट वाज हाफ इंचेस और थिकनेस कहाँ से पता चलेगी, ये हाफ इंचेस, ये मेरे पास एक होल का एरिया है और उसको मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 होल्स मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल दैट कम्स आउट टू बी नेट एरिया, सही हो गया। तो हमारे पास नेट एरिया आ जाएगा। नेट एरिया निकाल लिया, अब आपने निकालना है इफेक्टिव एरिया। अब वो क्या कह रहा है कि सिंस ओनली वन एलिमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड सो द नेट एरिया मस्ट बी रिड्यूस। जैसे मैंने आपको बताया था कि चूंकि सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ एक लेग कनेक्टेड है गजट प्लेट के साथ, अगर तो ये दोनों कनेक्टेड होती, ठीक है, अगर तो ये दोनों कनेक्टेड होती देन इट वुड हैव बीन इजी कि यू की वैल्यू शेयर लेग की फैक्टर डायरेक्टली हम इक्वल टू 1 ले लेता, मतलब अगर फुली क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड होता। बट सिंस ओनली वन लेग इज कनेक्टेड देयरफॉर वी नीड टू रिड्यूस द नेट एरिया, हमें नेट एरिया रिड्यूस करना है और वो रिड्यूस करने के लिए हमें शेयर लैग फैक्टर कैलकुलेट करना है। अब शेयर लैग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यू का फार्मूला, और यू का फार्मूला क्या था 1 - x डैश डिवाइड बाय एल। अब इसमें x डैश क्या है, x डैश इज द डिस्टेंस, x डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कनेक्शन टू द सेंट्रॉइड, ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो रहा है और उधर से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस जो है दैट इज द डिस्टेंस x डैश हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इस केस में तो गिवन है, कैलकुलेट कैसे करना है, देन अगेन हमें उसी मैनुअल की तरफ जाना पड़ेगा ठीक है। और इस मैनुअल में जाके देखें, अगर क्लियरली नज़र आएगा तो आपके पास ये इसको, इस डिस्टेंस को y डैश से डोनेट कर रहा है, इस डिस्टेंस को किससे डोनेट कर रहा है, y डैश से। तो आप y डैश कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे हमारे पास ये एक कनेक्शन था 6 × 6 × 1.5, ठीक है, तो इसमें y डैश कितना बन रहा है 1.67, तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है क्योंकि कनेक्शन क्या आ रहा है कि जहाँ से कनेक्शन हो रहा है, जैसे हमारे पास इधर प्लेट कनेक्ट हुई पड़ी है और उधर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस किससे y डैश, और y डैश इस सेक्शन के लिए कितना आया, मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ 6 × 6 × 1.5, सो दिस इज द, ठीक है, तो ये वाली चीज़ इधर से आएगी, आपको गिवन है बट आपने अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे फाइंड आउट करोगे। सो x डैश आ गया, ठीक है, और लास्ट थिंग वुड बी l, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन। तो कनेक्शन की लेंथ क्या है कि यहाँ से कनेक्शन डेवलप होना शुरू हुआ, बोल्ट इधर ड्रिल किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो लेंथ ऑफ द कनेक्शन वुड बी 3 इंचेस + 3 इंचेस, ठीक है। सो 3 + 3 दैट इज 6 इंचेस, तो 1 - x डैश डिवाइड बाय l, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, u इज इक्वल टू 1 - x डैश डिवाइड बाय l, तो मेरे पास शेयर लैग फैक्टर कितना आएगा 0.7217। इज दैट क्लियर। और जब मैं इसको नेट एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। मैं नेट एरिया कैलकुलेट कर लिया और उसको शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इफेक्टिव एरिया आ जाएगा, सही होगा। अच्छा, इफेक्टिव एरिया आ जाएगा ये चीज़, और आपसे रिक्वायर ये किया जाता है कि आपने फाइंड आउट करना है नेट इफेक्टिव एरिया फाइंड करना है। द अल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ यू कुड आल्सो बी यूज्ड बिकॉज दिस एंगल हैज 3 बोल्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। एक तो ये है कि हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया, एक ये है अल्टरनेटिव वे है क्या है कि स्पेसिफिक केस भी कोई गिवन है कि अगर एक एंगल सेक्शन इट हैज़ 3 bolts in the direction of load then the reduction factor can be taken as 0.6, ठीक है,
देन द रिडक्शन फैक्टर कुड बी टेकन एज 0.6 हो जाएगा। और वो ये देखिए ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। केस नंबर 8 क्या है, सिंगल एंड डबल एंगल सेक्शन इफ यू इज कैलकुलेटेड पर केस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर ये सिंगल या डबल एंगल कनेक्शन है, इफ 3 फास्टनर्स पर लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, कि जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है अगर उसमें 3 फास्टनर्स हैं, मतलब कम से कम 3 बोल्ट हैं, तो यू की वैल्यू आप ये भी ले सकते हैं, यू इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, ठीक हो जाए। तो आपने क्या करना है, यू की वैल्यू 0.6, सो अल्टरनेटिवली यू कुड बी टेकन एज 0.6। तो अगर मैं यू की वैल्यू पहले क्या थी जो मैंने कैलकुलेट की है दैट वाज 0.7217, और जो मैंने इधर से कैलकुलेट किया है मेरे पास क्या बचती है दैट इज़ 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 0.6 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा नेट एरिया से, तो हमारे पास इफेक्टिव एरिया कितना बच जाता है 3.012, ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके इफ़ यू इज कैलकुलेटेड एज पर केस 2 द लार्जर वैल्यू इज परमिटेड टू बी यूज। उन्होंने कहा कि लार्जर वैल्यू आपने यूज़ करनी है, जो इनमें से दोनों में से लार्जर वैल्यू आएगी, ठीक हो जाएगा। तो इसमें से बड़ी वैल्यू 0.727 है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर दिस इज़ द थिंग, आपने दोनों तरीके से, अगर आपके पास ये केस मानना है तो आपने दोनों तरीके से फाइंड आउट कर देना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग कम्स आउट टू बी, अगर सेम ही मेंबर है और उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, किस चीज़ से कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर वेल्ड कनेक्शन है, एक प्ले एंगल सेक्शन है, उसको मैंने वेल्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, गजट प्लेट के साथ कनेक्ट किया, बट इसमें क्या है वेल्ड के साथ, ठीक हो गया। सो वेल्ड के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे पास, देन अगेन चूँकि एंगल सेक्शन है तो उसका एक्स डैश डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी द सेम, दैट इज 1.67 इंचेस। और कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाय एल, एक्स इज द 1.67 एंड व्हाट इज द लेंथ, हेयर लेंथ इज द लेंथ ऑफ वेल्ड कनेक्शन, और वेल्ड की लेंथ दी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा वेल्ड वो वाली यूज़ करनी है जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, ऐसे नहीं कि आपने ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। दो तरह की लेंथ होगी, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेल्ड। इन द कमिंग स्लाइड्स आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वेल्ड कनेक्शन के बारे में, ठीक हो जाएगा। सो यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाय एल, एक्स डैश इज गिवन, एल दैट इज गिवन दैट इज 5.5 इंचेस, और जब मैं ये करूँगा तो 0.6964 आया। और मैं ग्रॉस एरिया को अब क्या करूँगा, मुझे इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, मुझे ग्रॉस एरिया चाहिए। ग्रॉस एरिया जैसे पहले पता चल चुका वो कितना था, दैट वाज 5.77। अब ग्रॉस एरिया से नेट एरिया निकालना है, तो भाई इसमें तो होल्स है ही नहीं, तो जब होल ही नहीं है तो दैट मीन्स नेट एरिया भी उतना ही होगा, सही हो गया। और हम ग्रॉस एरिया यूज़ कर सकते हैं या नेट एरिया, एक ही मतलब है, ठीक है। तो हम ग्रॉस एरिया को सिंपली शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी वुड कम अप विद द इफेक्टिव एरिया, सही हो गया। तो चूँकि इसमें बोल्ट्स कुछ नहीं है या होल्स ड्रिल नहीं किया तो हमें वो माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली ग्रॉस एरिया से ही मल्टीप्लाई करेंगे शेयर लैग फैक्टर को और हमारे पास इफेक्टिव एरिया बच जाएगा। तो इसका इफेक्टिव एरिया कितना बचेगा, दैट वुड बी 4.02 इंच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।